Hello friends, good morning. How are you all? Hope you are feeling very well in this crucial time. Okay, so now today is Thursday, very good, and today we are going to study social. So today's our lesson is lesson number 5, our festivals. Everyone loves the festivals very much, no? So let's start with the mind opener. Do you like celebrating festivals? Which is your favorite festival? How do you celebrate it? Do all your classmates celebrate this festival or do they celebrate different festivals? चलो सबको फेवरेट सबको फेस्टिवल्स बहुत पसंद है सबके फेस्टिवल्स अलग अलग होते हैं सबके फेवरेट फेस्टिवल्स अलग अलग होते हैं सो हमारे क्लासमेट्स यानी हमारे क्लास में जो हमारे साथ पढ़ते हैं वो हर एक इंसान अलग अलग रिलीजन का होता है तो someone is Hindu, someone is Muslim, someone is Christian, someone is Parsi तो सब लोग साथ में मिलके सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं पर हर एक रिलीजन का खुद का एक अलग फेस्टिवल होता है ओके so we'll study this all festivals in this lesson so in this lesson we'll study about number 1 the different kinds of festivals celebrated in India. India में कौन से different types of festivals celebrate होते हैं? National festivals, 2 festivals हैं ना वो 3 parts में divide होते हैं. First is national festival, second is religious festivals and third are harvest festivals and the fourth क्या होता है? The birthdays of great people. ठीक है कुछ बड़े-बड़े लोग जो होते हैं उसके birthdays को भी हम लोग as a festival celebrate करते हैं ठीक है उसके मेन पार्ट्स हैं 3 बट कुछ पीपल जो होते हैं जैसे महात्मा गांधी उसके बर्थडे को हम ऐसे गांधी जयंती सेलिब्रेट करते हैं ओके तो ऐसे हम लोग कुछ महान लोग होते हैं उसके बर्थडे को हम एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ओके लेट्स मूव फॉरवर्ड टू festivals festivals are divided into 4 parts national festivals harvest festivals religious festivals and birthdays of great people a festival is a time for fun joy and celebration तो festival क्या time है festival is a time for fun joy and celebration ठीक है festivals में बहुत मजा आता है बहुत हम लोग मजे करते हैं और उसको सेलिब्रेट भी करते हैं India is a land of festivals not a single month goes by without a festival ठीक है इंडिया जो है हमारा वो that is a month of a festivals उसमें बहुत सारे festivals आते हैं ठीक है तो उसमें हर एक महीने में कम से कम एक फेस्टिवल होता है तो मंडे को हमारे एक फेस्टिवल गया कौन सा था वेरी गुड इट वाज रक्षाबंधन दूसरा एक फेस्टिवल हमारा सैटरडे को गया तो वो कौन सा था दैट वाज ईद वेरी गुड एवरीवन नोज अबाउट दिस ओके तो हमारा यहाँ पे इंडिया में एक महीना भी ऐसा नहीं होता कि जब हम फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट नहीं करते some festivals are common to the whole country while others are celebrated only in some states so कुछ फेस्टिवल्स जो होते हैं ना वो कॉमन होते हैं सब पूरे सारे स्टेट्स के लिए पूरे कंट्री के लिए बट कुछ फेस्टिवल्स जो होते हैं ना जैसे कि पोंगल है ठीक है नवरोज है वो कुछ स्टेट्स के कुछ इलाके में या कुछ स्टेट्स में पर्टिकुलर स्टेट्स में वो सेलिब्रेट किए जाते हैं ओके Festivals are mainly of 3 kinds. These are national days, religious festivals and harvest festivals. Okay. तो festivals मैंने आपको बताया कितने टाइप्स के होते हैं mainly they are of 3 types. First is national days. Okay. So which are the national days? National days are 15th August, 26th January, Gandhi Jayanti. Very good. And religious festivals are so much. Holi, Diwali, Christmas, Eid. Okay. These all are religious festivals and harvest festivals. Harvest festivals are Pongal. Okay, like that. Let's move forward. National days. So, national days are celebrated throughout the country as these days are important to all Indians. National days जो होते हैं वो throughout the country पूरे country में एक साथ celebrate होते हैं because they are very important like Independence Day, Republic Day. Okay, so full India was became independent on the single day. पूरा इंडिया
are celebrated as Independence Day, Republic Day and गांधी जयंती। ठीक है, मैंने जैसे आपको बोला 3 नेशनल फेस्टिवल्स है उसको हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो फर्स्ट इज इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे एंड गांधी जयंती। Now moving forward to the Independence Day. Okay, this is the picture of the Independence Day parade. Okay, that you can see in your book also. This is how Independence Day is celebrated in our country. On 15th August, we celebrate our Independence Day. It was on this day in the year 1947 that India won its independence from British rule. Okay, so on which day we celebrate our Independence Day? 15th August. Very good. On which year did India got independence? In 1947. From whom? From British rule. So हमारे इंडिया को ब्रिटिश रूल से आज़ादी मिली 15th अगस्त को in 1947. तो इसलिए every 15th August we celebrate this day. Every year a function is held at the Red Fort in New Delhi. The Prime Minister hoists the national flag and gives a speech. Every year Red Fort है ना हमारा न्यू दिल्ली में, वहाँ पे एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया जाता है और वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो फ्लैग को होइस्ट करते हैं और एक स्पीच देते हैं। ये मैंने आपको जैसे फिगर दिया, दिस इज द फिगर ऑफ रेड फोर्ट न्यू दिल्ली। On this day we remember the freedom fighters who gave their lives for the freedom of our country. ये दिन पे हम लोग क्या करते हैं 15 अगस्त पे? We remember our freedom fighters, जिसने हम लोग के लिए जान दी, जिसने ये देश को फ्री करने के लिए अपनी जान दी, उसको हम लोग याद करते हैं। Next comes Republic Day. When is our Republic Day? Yes, very good. It is on 26th January. So this is the picture how our Republic Day is celebrated. On 26th January, we celebrate our Republic Day. A grand parade is held at Rajghat in New Delhi. The armed forces, police, folk dancers, and school children are some of those who take part in it. 26th January को we celebrate Republic Day. Republic Day की grand parade कहाँ पे ऑर्गेनाइज होती है? At राजपथ in New Delhi. इसमें कौन-कौन पार्ट लेते हैं? Very good. Armed forces, police, folk dancers and school children. स्कूल के बच्चे. Children who win awards for bravery are part of the parade. जिसको पूरे ईयर में bravery के कोई अवार्ड्स वगैरह मिलते हैं उसको भी ये परेड का पार्ट बनाया जाता है। Tabloids from different states make the parade lively. Parades take place in state capitals also. State की capitals जो होते हैं, हम लोग ने इसके पहले वाले लेसन में states and states capitals पढ़ा। ओके, so what is the capital of Gujarat? Is very good. It is गांधीनगर। ओके, so हर एक स्टेट की कैपिटल में भी स्मॉल परेड्स ऑर्गेनाइज होती है। नेक्स्ट इज गांधी जयंती। दिस इज समाधि ऑफ गांधी जी। ओके, who haven't heard of Bapu? That is how we lovingly call महात्मा गांधी। हम महात्मा गांधी को कैसे बोलते हैं? बापू। ये सब को पहचानते हैं एज अ बापू। He led the Indians in their fights for freedom from British. So we also call him the father of the nation. Okay, he led the fight. Fight करने के लिए कोई लीडर तो चाहिए ना हमको। So he was the leader for the fight of the freedom fights against the Britishers. So उसने हम सबको लीड किया था। So we call him बापू। हम सब यहाँ से उसको बापू बोलते हैं और he is also known as the father of the nation. उसको father of the nation भी बोलते हैं। महात्मा गांधी was born on 2 October. महात्मा गांधी का जन्म कभी हुआ था? On 2 October. We celebrate this day as गांधी जयंती। और ये दिन को कैसे सेलिब्रेट करते हैं? As the गांधी जयंती. A function is held at this समाधि at राजघाट in New Delhi. एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है उनकी
समाधि कहाँ पे है? एट राजघाट इन न्यू दिल्ली। द प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर एंड अदर्स ऑफर प्रेयर्स एट द समाधि। ठीक है, तो वहाँ पे कौन कौन जाता है? हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और कुछ हाई लेवल के लोग जैसे मिनिस्टर्स, पॉलिटिशियंस, ठीक है, वो वहाँ पे जाते हैं और प्रे करते हैं उनकी समाधि पे। प्रेयर मीटिंग्स आर हेल्ड ऑल ओवर द कंट्री। ठीक है, मीटिंग्स होती है, प्रेयर्स होती है पूरी पूरी कंट्री में, हर एक जगह पे। On this day, we pledge to follow Gandhiji's teaching of non-violence and truth. तो ये दिन पे हम लोग 2 अक्टूबर पे क्या करते हैं? We pledge, हम लोग प्लेज लेते हैं कि प्लेज यानी शपथ लेना। हम लोग शपथ लेते हैं कि हम गांधी जी के रूल्स जो है वो फॉलो करेंगे। Which are the rules? Rules of non-violence and truth, यानी किसी को कभी मारेंगे नहीं। ठीक है, it is called non-violence and truth। हम लोग हमेशा सच बोलेंगे। Now comes religious festivals. Religious festivals are celebrated throughout the country. People belonging to different religions have their own festivals. तो religious festivals जो है वो throughout the country celebrate होते हैं। जो people वो religion से related है वो उसके festival celebrate करता है। So our first religious festival is Diwali. So how do we celebrate Diwali? Yes, very good. By कैसे celebrate करते हैं? भूल गए? Yes, very good. We celebrate Diwali by doing fireworks, by doing rangolis. हम लोग रंगोली बनाते हैं, फटाके जलाते हैं, नए-नए कपड़े खरीदते हैं ना, ऐसे हम लोग दिवाली celebrate करते हैं। दिवाली is called the festival of lights. दिवाली को किसका फेस्टिवल बोला जाता है? लाइट्स का। It's called the festival of lights. On this day, people decorate their houses with diyas, lights and candles. दिवाली के दिन हम दिए जलाते हैं, लाइट्स लगाते हैं घर में, कैंडल्स लगाते हैं। ठीक है, पूरी घर में रोशनी हो जाती है। Many people burst firecrackers. Many नहीं, सब लोग है ना, आप भी करते हो ना firecrackers. We also do firecrackers. पटाखे चलाते हैं हम लोग। Floor patterns called rangoli are made. Lakshmi, the goddess of wealth, is worshipped. Okay, तो firecrackers चलाते हैं, फिर हम लोग रंगोली बनाते हैं। आपकी मम्मी रंगोली बनाती होगी घर में। फिर लक्ष्मी जी जो जिसको बोलते हैं गॉडेस ऑफ वेल्थ, ठीक है, मनी, पैसे की देवी उनको बोलते हैं। ठीक है, उनकी पूजा होती है, उनको वर्शिप किया जाता है, उनकी पूजा होती है इस दिन। People wear new clothes and eat special food and sweets. वो दिन पे सब लोग नए-नए कपड़े पहनते हैं और अच्छी-अच्छी मिठाइयाँ खाते हैं। They visit friends and relatives to greet them and give gifts. ठीक है, तो वो सब फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के घर जाते हैं उनको हैप्पी दिवाली बोलने के लिए और उनको गिफ्ट्स देते हैं। और छोटे-छोटे बच्चों को गिफ्ट्स मिलती है। आपको भी मिलती है ना, मम्मी से, दादी से, अंकल आंटी से, है ना? दिवाली signals the onset of winter in North India. नॉर्थ इंडिया में दिवाली का मतलब होता है कि अभी विंटर शुरू हो गया। ऑनसेट मतलब स्टार्टिंग ऑफ द विंटर सीजन। ओके, तो दिवाली से विंटर से तक जो है वो स्टार्ट होती है। Now our next festival is Holi. Yes, this is how we celebrate Holi. पिचकारी है ना, पिचकारी से होली सेलिब्रेट करते हैं, गुब्बारों से होली सेलिब्रेट करते हैं। ओके, होली इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ कलर्स। दिवाली को जैसे फेस्टिवल ऑफ लाइट बोला जाता है, होली को फेस्टिवल ऑफ कलर्स बोला जाता है। इट इज सेलिब्रेटेड मेनली इन नॉर्थ इंडिया। मेनली वो नॉर्थ इंडिया में ही सेलिब्रेट की जाती है, बाकी सारे पार्ट्स में उसको सेलिब्रेट नहीं करते। पीपल थ्रू कलर पावर्स कॉल्ड गुलाल और ईच अदर। ओके, तो हम लोग क्या करते हैं? कलर्ड पाउडर, अलग-अलग कलर का गुलाल आता है, वो एक दूसरे पर डालते हैं। होली signals the end of winter and is the time when the wheat crop is ready for harvesting. तो होली का मतलब क्या होता है? एंड ऑफ द विंटर, मतलब विंटर सीजन अभी खत्म हो गई। और सेकेंड उसका मीनिंग क्या होता है? इट इज द wheat crop is ready for harvesting. ये वो टाइम है जहाँ पे wheat यानी गेहूँ
की शॉपिंग शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट कम्स दशहरा। हाउ वी सेलिब्रेट दशहरा? यस, ये रावण को हम लोग जलाते हैं, मारते हैं ना? यस, हम लोग नहीं मारते, तो हम लोग उसको देखने जाते हैं। ओके, रावण को जो जलाया जाता है, वी गो टू वॉच दैट, हम लोग को देखने जाते हैं। दशहरा celebrates the victory of good over evil. दशहरा क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? The victory of good, यानी गुड यानी अच्छाई की जीत, किस पे? over the evil, बुराई पर अच्छाई की जीत। हमें मालूम है कि जो रावण था, जो 10 सर वाला था, उसने सीता माता को उठा लिया था, फिर राम के साथ उसकी फाइट हुई, ठीक है, और फिर हमारे भगवान राम जो है वो जीत गए। सो इट इज सेलिब्रेटेड because of victory over the evil of the good. Okay, good यानी भगवान राम की विक्ट्री, विजय होने की खुशी में हम लोग दशहरा मनाते हैं। It is believed that on this day the god Rama killed Ravana, the 10-headed demon king. Okay, so we know that भगवान राम ने रावण को हरा दिया, उनको मार दिया था। रामलीला डांस ड्रामा depicting the story of Rama's life is staged. कहीं-कहीं पे रामलीला ऑर्गेनाइज की होती, तो रामलीला क्या होती है? रामलीला जो है वो भगवान राम की पूरी लाइफ स्टोरी है, उसको अलग-अलग कैरेक्टर्स जो है वो वहाँ पे निभाते, स्टेज पे करते। In West Bengal and some other states, Dashera is celebrated as Durga Puja. कुछ वेस्ट बंगाल, कुछ ऐसे स्टेट्स में दशहरा जो है उसको दुर्गा पूजा भी बोला जाता है। नेक्स्ट कम्स गुरुपुरब। इट इज द फेस्टिवल ऑफ सिख। तो सिख क्या करते हैं उस दिन? दे गो टू द गुरुद्वारा एंड रीड द होली बुक। उन लोग की होली बुक होती है गुरु ग्रंथ साहिब, ओके, उसको रीड करते हैं, उसका रेसिटेशन करते हैं। गुरुपुरब मीन्स द फेस्टिवल ऑफ गुरु, उसको गुरु का फेस्टिवल बोला जाता है। Youth procession are taken out in towns and cities. कई टाउन्स में गुरु ग्रंथ साहिब जो है उनकी किताब, उसको सर पे रख के एक प्रोसेशन निकाला जाता है। The Sikhs go to गुरुद्वारा to offer prayers. सिख वहाँ पे गुरुद्वारा में जाते हैं और प्रेयर्स करते हैं। Langars are held where free meals are given to all. Langars हेल्ड किए जाते हैं, मतलब लंगर्स बनाए जाते हैं जहाँ पे सबको फ्री में खाना दिया जाता है। The holy book of Sikhs called Guru Granth Sahib is read on this day. तो गुरु ग्रंथ साहिब जो सिख की होली बुक है वो इस दिन पे रीड की जाती है। There is a big celebration in the Golden Temple at Amritsar. तो उनका जो ह्यूज टेम्पल है, दैट इज गोल्डन टेम्पल, वहाँ पे एक बड़ा सा सेलिब्रेशन होता है। नेक्स्ट इज ईद उल फितर। यस, ऑलमोस्ट इट इज द होली फेस्टिवल ऑफ मुस्लिम्स। तो हाउ इज इट सेलिब्रेटेड? ईद उल फितर के दिन जो मेल लोग होते हैं, जेंट्स लोग, वो नमाज पढ़ने जाते हैं मस्जिद पे और फिर एक दूसरे को हग करके ईद मुबारक बोलते हैं, लाइक दिस। Eid al-Fitr is celebrated to mark the end of the month-long period of fasting called Ramzan. Eid al-Fitr क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? एक महीने का लंबा जो फास्ट होता है रमजान, उसके एंड में, उसका खत्म होने पर ईद उल फित्र सेलिब्रेट किया जाता है। Prayers
क्रिसमस ट्रीज डेकोरेट किए जाते हैं और सांता क्लॉज आते हैं जो बच्चों को गिफ्ट्स देते हैं। Christmas is celebrated on 25th December every year as the birthday of Jesus Christ. Christmas क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? It symbolizes the birthday of Jesus Christ. 25th को दिसंबर को जीसस क्राइस्ट का जन्म हुआ था, उसके लिए क्रिसमस सेलिब्रेट किया जाता है। On 25th December at midnight, special prayers take place in churches. Churches में 24th को आधी रात को स्पेशल प्रेयर्स ऑर्गेनाइज होती है। Christmas trees are decorated and plum cakes are specially baked. Children love to receive gifts from Santa Claus. Okay, तो क्रिसमस ट्रीज जो है उनको डेकोरेट किया जाता है और स्पेशल केक्स प्लम केक्स बनाए जाते हैं और बच्चों को सांता क्लॉज से गिफ्ट देने में बहुत मजा आता है। हमारे स्कूल में भी सेलिब्रेट होता है एवरी टाइम क्रिसमस, है ना, फिर हम लोग भी सांता क्लॉज से चॉकलेट्स वगैरह लेते हैं। नेक्स्ट इज नवरोज। ये किसका फेस्टिवल है? एनी आइडिया कैसे सेलिब्रेट होता है? यस, इट इज द फेस्टिवल ऑफ पारसीज। पारसी लोग जो होते हैं वो प्रे करते हैं ये फेस्टिवल के दिन। नवरोज सेलिब्रेट्स द पारसी न्यू ईयर। तो नवरोज क्या सेलिब्रेट होता है? बिकॉज इट इज द न्यू ईयर ऑफ पारसी। इट इज सेलिब्रेटेड ऑन March 21, marking the end of winter and the beginning of spring. वो क्यों सेलिब्रेट होता है? कि विंटर का एंड होता है, स्प्रिंग की शुरुआत होती है, उसके उस दिन नवरोज शुरू होता है, नवरोज सेलिब्रेट किया जाता है। नेक्स्ट आर हार्वेस्ट फेस्टिवल्स। Harvest is the time when crops are ready for cutting and gathering. Farmers are happy that they have got the fruits of their hard work. तो हार्वेस्ट फेस्टिवल्स क्यों सेलिब्रेट किए जाते हैं? क्योंकि ये वो टाइम होता है जब जो फार्मर्स होते हैं उसके पूरे साल की या 6 मंथ्स की जो मेहनत होती है उसका फल मिलता है उसको एज अ क्रॉप। तो हम लोग भी जिस दिन रिजल्ट आता है तभी सेलिब्रेट करते हैं ना, मम्मी को बोलते हैं चॉकलेट्स दो, पार्टीज दो। क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि हम लोग पूरे ईयर जो मेहनत करते हैं उसका रिजल्ट हमें मिलता है। ओके, ऑन द डे ऑफ द रिजल्ट के दिन पूरे साल की मेहनत का हमें फल मिलता है। Harvest festivals are celebrated in all the states. Everyone participates in them. Harvest festivals जो होते हैं वो हर एक स्टेट्स में सेलिब्रेट होते हैं, सब उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। The first harvest festival is Bihu. This is a special dance organized on this festival. ये फेस्टिवल्स जब भी ऑर्गेनाइज होते हैं तभी ये ऐसे स्पेशल डांस फॉलो करते हैं। Bihu is the harvest festival of Assam. Bihu कहाँ का harvest festival है? Yes, very good, is the harvest festival of Assam. 3 Bihus are celebrated in a year. एक ईयर में 3 बार बिहू को सेलिब्रेट किया जाता है। Buffalo fights, big bonfire, singing, dancing and feasting are a part of this festival. ये फेस्टिवल में क्या क्या चीजें होती हैं? बफेलो फाइट होती है, नेक्स्ट इज बिग bonfire, बड़ा सा लकड़ी का फायर होता है, नेक्स्ट इज सिंगिंग, जिसको गाना आता है वो गाना गाते हैं, डांसिंग जो मैंने आपको फोटो दिखाया डांस करते हैं वो उनका स्पेशल तरह का डांस होता है, डांस करते हैं, फीस्टिंग यानी सब एक साथ मिलकर खाना खाते हैं। ये सब एक फेस्टिवल का पार्ट होता है। Young girls wearing traditional Assami clothes are seen performing special Bihu songs and dances. जो young girls होती हैं वो उनके स्पेशल आसामी क्लोथ्स पहनती है और फिर सिंगिंग और डांसिंग करती है। So next is पोंगल। पोंगल कैसे सेलिब्रेट किया जाता है? पोंगल ऐसे सेलिब्रेट किया होता है, उस दिन कैटल्स जो होते हैं काउ उसको नहलाते हैं, उसको डेकोरेट करते हैं। पोंगल इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। पोंगल कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? करेक्ट, इट इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ तमिलनाडु। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर 3 days। वो 3 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है। बिहू 1 ईयर में 3 टाइम्स सेलिब्रेट किया जाता है और पोंगल जो है वो एक ही बार
होते हैं वो कॉलम्स बनाते हैं अपने हाउसेस को डेकोरेट करने के लिए। केटल्स आर वॉश्ड, पेंटेड, डेकोरेटेड विद गार्लैंड्स, स्वीट एंड वर्शिप। ओके, सो क्या होता है कि केटल्स जो होते हैं, मैंने आपको इसके पहले वाले पिक्चर में दिखाया, जो केटल्स होते हैं उसको अच्छे से वॉश करते हैं, उसको पेंटिंग करते हैं, उसकी बॉडी को उसको डेकोरेट करते हैं और उनको अच्छे से खाना खिलाते हैं और उनकी पूजा करते हैं। इन आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका द फेस्टिवल इज कॉल्ड संक्रांति। तो ये तीनों आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटका में यही फेस्टिवल को संक्रांति बोला जाता है। ठीक है, तमिलनाडु में इसको पोंगल बोला जाता है और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड कर्नाटका में इसको संक्रांति बोला जाता है। नाउ आवर नेक्स्ट फेस्टिवल इज ओणम। ओणम ये लोग ऐसे सेलिब्रेट करते हैं, उस पे अच्छा अच्छा खाना बनाते हैं और उसको एक लीफ में खाना सर्व करते हैं। हम लोग प्लेट में सर्व करते हैं ना, तो ओणम के दिन वो लोग लीफ में खाना सर्व करते हैं। स्पेशली मोस्ट ऑफ ये बनाना लीव्स होते हैं। ओणम इज अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ केरला। ओणम कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? केरला का। इट इज कॉल्ड द फेस्टिवल ऑफ फ्लावर्स। उसको फ्लावर्स का फेस्टिवल बोला जाता है। पीपल wear new clothes and eat a special meal which is served on banana leaves. Okay, तो जो लोग होते हैं वो अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं और नया नया खाना बनाते हैं, अच्छा अच्छा, उसको किस पे सर्व करते हैं? अपना बनाना लीफ। दिस इज कॉल्ड ओणम सदिया। उसको ओणम सदिया बोला जाता है। बोट रेसेस आर हेल्ड एट अ नंबर ऑफ प्लेसेस इन केरला। दिस इज वन ऑफ द मेन अट्रैक्शन ऑफ ओणम। ओणम के दिन बोट होती है, उसकी रेस चलाई जाती है। केरला में बहुत सारी जगह पे बोट रेसेस ऑर्गेनाइज की जाती है। तो ओणम का मेन अट्रैक्शन जो होता है वो बोट रेसेस होता है। सो नेक्स्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल इज बैसाखी। सो हाउ इज इट सेलिब्रेटेड? बैसाखी सेलिब्रेट होता है, पंजाबीज लोग होते हैं वो मोस्टली बैसाखी को सेलिब्रेट करते हैं। उस दिन पंजाबी स्पेशल डांस होता है और ऐसे मेले वगैरह लगते हैं। बैसाखी इज द हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया। बैसाखी कहाँ का हार्वेस्ट फेस्टिवल है? करेक्ट, इट इज द फेस्टिवल ऑफ नॉर्थ इंडिया। इट इज सेलिब्रेटेड विद ग्रेट एंथुसियाज्म इन पंजाब। स्पेशल पंजाब में उसको बड़ी खुशी से, बड़े धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है। द मैन परफॉर्म्स द भांगड़ा टू द बीट ऑफ द ढोल्स। मतलब ढोल की बीट पर, उधर म्यूजिक नहीं बजाया जाता है पर ढोल बजाया जाता है। ढोल की जो बीट होती है उस पे जो जेंट्स होते हैं, मेल्स लोग, मैन, वो भांगड़ा परफॉर्म करते हैं एंड वुमेन्स लोग चिड़ा। वुमेन्स जो डांस करते हैं उसको चिड़ा बोलते हैं। On many of these festivals, huge fairs are held. Shops, stores, rides, puppet shows, and circus form part of these fairs. Okay, so मैंने आपको बोला कि fairs यानी मेले, बड़े बड़े मेले लगाए जाते हैं। तो मेले में क्या होता है? शॉप्स होते हैं, स्टॉल्स होते हैं, राइड्स होती है, पपेट शो होता है, ओके, ये सारा, और सर्कस भी होता है। ये सब चीजें मेले में होते हैं। यहाँ पे भी हमारा मेला लगता है ना, सीजन्स पे मेला लगता है। दिवाली का मेला होता है, फिर दूसरा मेला कभी होता है? ये करेक्ट, इन समर सीजन, जब भी तुम लोग की छुट्टियाँ होती है तभी मेला लगता है। ओके, सो यहाँ पंजाब में स्पेशल अभी मेला लगता है। Now comes the birthdays. Birthdays of great people are also celebrated as festivals. जो बड़े लोग होते हैं, जो ग्रेट पीपल्स होते हैं, ठीक है, जिन्होंने हमारी कंट्री के लिए कुछ किया होता है, ऐसे ग्रेट पीपल्स का बर्थडेज भी हम लोग एज अ फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। The birthday of Gautam Buddha is celebrated as Buddha Purnima. Okay, so भगवान बुद्ध का जिस दिन जन्म हुआ था उस दिन को बुद्ध पूर्णिमा बोला जाता है। तो ये भगवान बुद्ध की मूर्ति है, इट इज अ स्टैच्यू। We celebrate the birthday of महावीर as महावीर जयंती। हम महावीर का जन्म जिस दिन हुआ था उस दिन हम लोग महावीर जयंती मनाते हैं। जैसे गांधी जी के बर्थडे को हम लोग गांधी जयंती बोलते हैं।
Jawaharlal Nehru's birthday on 14 November is celebrated as Children's Day. ये तो सबको याद ही होगा, ओके। 14 नवंबर को जवाहरलाल नेहरू का बर्थडे होता है, उसको चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। वो क्यों किया जाता है मालूम है? यस करेक्ट, जवाहरलाल नेहरू को बच्चे बहुत प्यारे थे, उनको बच्चे बहुत पसंद थे, इसके लिए उसका बर्थडे जो है वो एज अ चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेट किया जाता है। हाँ, तो ऐसे सब बच्चे जो है वो एज अ जवाहरलाल नेहरू ड्रेसअप होते हैं, जवाहरलाल नेहरू के जैसे तैयार होते हैं, सर पे टोपी पहनते हैं और फ्लावर जैसे जवाहरलाल नेहरू कोट पे लगाते थे, वैसे ही बच्चे भी अपने हाथ में रोज रखते हैं, ओके। The birthday of Dr. S. Radhakrishnan on 5th September is celebrated as Teachers Day. Okay, so Dr. S. Radhakrishnan है, उनका जो बर्थडे है वो टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। क्यों? क्योंकि उनको टीचर्स बहुत पसंद थे। He was also a teacher, वो भी एक टीचर थे, तो उनके रिस्पेक्ट में उनका बर्थडे टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। डॉक्टर राधाकृष्णन द सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया वाज अ हाईली रिस्पेक्टेड एंड मच लव्ड टीचर। मैंने आपको जैसे बताया वो सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिया के सेकंड प्रेसिडेंट थे और ही वाज हाईली रिस्पेक्टेड, उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते थे सब, एंड ही वाज वेरी लव्ड टीचर। बहुत सारे उनके स्टूडेंट्स थे वो उनको प्यार करते हैं। आप भी अपने टीचर से प्यार करते हो ना? हाँ, सबकी फेवरेट टीचर होता है, सबका फेवरेट सब्जेक्ट होता है, ओके। वो इसकी फेवरेट टीचर को बहुत पसंद करते हैं। तो आप लोग अपना प्यार दिखाने के लिए क्या करते हो? टीचर्स के लिए रोज लेके जाते हो, उनको फ्लावर्स देते हो, फिर टीचर्स डे के दिन क्या करते हो? टीचर को चॉकलेट देते हो, टीचर को विश करते हो, हैप्पी टीचर्स डे, है ना? दिस इज अवर एस राधाकृष्णन। Though we may belong to different religions and celebrate different festivals, we share a common bond. Okay, so though we may belong to the different religions, हम लोग अलग-अलग religions के अलग-अलग festivals सेलिब्रेट करते हैं, पर हम लोगों के बीच एक common bond है। जैसे हम लोग ने ये बात इसके पहले वाले में लेसन में भी सीखी थी, तो we are of अलग-अलग states, हम लोग अलग-अलग स्टेट में है, पर हम लोग के बीच में common bond है। What is that bond? Yes, we all are Indians. Very good. We are all Indians. Okay, so हम लोग अलग-अलग states में रहे, अलग-अलग religions follow करें, कुछ भी हो, but the one bond is between us is we all are Indians. We must take part in each other's religion. We must take part in each other's festivals and celebrations. हम लोग को एक दूसरे के religion में पार्ट लेना चाहिए, एक दूसरे के फेस्टिवल्स में पार्ट लेना चाहिए, है ना? तो हम लोग स्कूल में सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं ना, तो चाहे वो क्रिसमस हो या दिवाली या मकर संक्रांति, कोई भी फेस्टिवल हो, सारे स्कूल में सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो वैसे इस तरह से हम लोग हर एक रिलीजन में पार्ट लेते हैं, हर एक रिलीजन के फेस्टिवल्स में पार्ट लेते हैं, ओके। I now know that is what have we learned in this lesson. तो ये लेसन इतने बड़े इस लेसन में हम लोग ने क्या सीखा? एक बार छोटा सा रिकैप ले लें। So number one, there are three kinds of celebrations and festivals in India: national days, religious festivals, and harvest festivals. The main three types of festivals होता है. First is religious days, national festivals, and harvest festivals. Number two, the national days are Independence Day, Republic Day, गांधी जयंती। So national days कौन-कौन से हैं? सिर्फ 3 हैं: Independence Day, Republic Day, and गांधी जयंती। Come to the point number 3. Some religious festivals are Diwali, Holi, Dussehra, Eid, Christmas, and Nowruz. तो कुछ religious festivals है, उसमें आता है दिवाली, होली, दशहरा, ईद, क्रिसमस, नवरोज, बहुत सारे, ओके। Number 4, some harvest festivals are Bihu, Pongal, Onam, and Baisakhi. तो कुछ harvest festivals भी हैं, कौन से हैं वो? Bihu, Pongal, Onam, and Baisakhi. Number 5, we celebrate the birthdays of some great people too. वो बड़े लोगों का बर्थडे, great people, उनका बर्थडे भी हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। और कुछ ऐसे नए वर्ड्स जिसको हमें याद रखना चाहिए, words to remember.
दे आर फेस्टिवल्स। तो फेस्टिवल क्या होता है? इट इज अ डे और पीरियड ऑफ रिलीजियस और द सेलिब्रेशन। फेस्टिवल एक दिन होता है या कुछ दिन का एक पीरियड होता है जहाँ पे वो दिन वो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, वो रिलीजन वाले उसको सेलिब्रेट करते हैं। इंडिपेंडेंस मतलब बीइंग फ्री, ओके, नॉट बीइंग कंट्रोल्ड बाय अदर पीपल। कोई हम पे कंट्रोल नहीं कर रहा, उसको बोलते हैं इंडिपेंडेंस। यू आल्सो गेट इंडिपेंडेंस, है ना? जब स्कूल से छूटते हो तो भाग के रिक्शा में जाते हो, क्यों? तभी आप सोचते हो कि हम भी इंडिपेंडेंट हो गए, हमें भी फ्रीनेस मिल गई। करते हो ना सब लोग ऐसा, है ना? चलो नेक्स्ट इज समाधि, अ मॉन्यूमेंट टू द मेमोरी ऑफ अ डेड पर्सन erected over their ashes। वो क्या होता है? एक मॉन्यूमेंट होता है जो गुजर गया है, उसके ऊपर एक मॉन्यूमेंट बनाया जाता है। इसको हम लोग याद करके उसके डेथ के दिन या उसके हैप्पी बर्थडे, उसके जन्मदिन के दिन हम उनको याद करते हैं, उनके लिए प्रे करते हैं। दिया, स्मॉल ऑयल लैम्प, सबको मालूम है, हम लोग दिवाली के दिन दिया जलाते हैं। हाँ, वेरी गुड। कभी लाइट चली जाती है तभी भी हम दिया जलाते हैं, टॉर्च घर में नहीं होती तो हमें दिया जलाना पड़ता है। बट अभी के टाइम पे टॉर्च आ गई है, पहले के टाइम पे तो टॉर्च नहीं थी, सो व्हाट डू दे यूज? तभी वो लोग दिया ही जलाते थे। नेक्स्ट इज लंगर, कॉमन किचन इन अ गुरुद्वारा वेयर फूड इज सर्व्ड टू ऑल द विजिटर्स फॉर फ्री। एक कॉमन किचन होता है जहाँ पे सबको फ्री में खाना परोसा जाता है। कोलम, a traditional decorative pattern made on the floor using rice powder। कोलम क्या होता है? जो चावल का पाउडर होता है ना, उससे घर की जो वॉल होती है, ठीक है, उस पे पैटर्न्स बनाई जाती है, घर के फ्लोर पे पैटर्न बनाए जाते हैं, उसको कॉलम्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग दिवाली में रंगोली बनाते हैं, हम वो कैसे बनाते हैं? विद द कलर्स। बट ये कोलम जो है वो राइस का जो काम होता है उससे बनाई जाती है। So kids, now I hope you all have understood the lesson. Okay, so now get ready for your homework. Okay, do your homework on time. Get prepared for our next exam. Okay, we'll meet again for our next e-learning session. Till then, stay